Good morning everybody student. Today we are going to learn the practice set 2.1 continue in Rathod sir's math lecture. In figure, angle QPR is equal to 90 degree, segment PM perpendicular segment QR, and QMR, PM is equal to 10, QM is equal to 8. Find QR. So triangle PQR is a right angle triangle. In this triangle we have C. The angle P is a right angle, and 8 and 10, these are two segments, PM and QM we have given. So while writing solution we have to write the given. What we have given? PM is equal to 10, QM is equal to 8, and QR is question mark. Why question mark? Because QR we have to find out. And then by using geometric formula we can see what is the formula of geometric mean. If the altitude of a triangle, its square is equal to product of remaining two sides of a hypotenuse. Means hypotenuse has a two segment form if we construct one altitude, then product of this two. जैसे कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये सबको पता है. तो पी क्यू आर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें पी एम ये एक अल्टीट्यूड ड्रा किया है. तो ये अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे क्यू आर सेगमेंट दो सेगमेंट में डिवाइड हुई है. तो इसी अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेगमेंट. देन पी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. तो पी एम की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 10. 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो आता है 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर एज इट इज़. तो ये मल्टीप्लाई का 8 जो है वो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाता है. तो एम आर इज इक्वल टू 100/8. तो 100 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है एम आर इज 12.5. सो वी हैव गॉट द एम आर. एम आर इज ओनली वन सेगमेंट. वी कैन नॉट फाइंड द कंप्लीट क्यू आर. So we have to find the QR, then we have to sum of these two segments QM plus MR. Then QR is equal to QM plus MR, and then QR is equal to 8 plus 12.5. It becomes 20.5. So like this we got the answer of question number 3rd. If you want to take it screenshot, you can see with complete solution for your personal information or for writing. Now example number 4. See figure, find PRP and PS using the information given in triangle PSR. So triangle PSR, it is a right angle triangle. It has here given 30 degree one angle, another side is 60. And do you know very well, every triangle has the interior all angles sum is 180 degree. If one is 30 and another is 90 degree, then remaining angle is always 60 degree. Then we can write here the remaining angle is 60 degree, which we does not have given in the question. So now we have to find its solution. So while we are going to find its solution, then what should we do? Then while finding solution, first of all, by given triangle we have to use here a property 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. So 30 डिग्री 60 डिग्री 90 ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फॉर्मूलेज है, वो हमें अभी यहाँ पे यूज़ करने हैं. तो देखिए पहला, अभी हमें 30 डिग्री के अपोजिट साइड गिवन है 6, तो इसके हेल्प से हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं पी आर. तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड का जो फॉर्मूला है, 30 डिग्री अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. एंड डू यू नो 30 degrees opposite side we have given 6, so we can put here 6 is equal to half into hypotenuse. जैसे कि अभी ये 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगी, मल्टीप्लाई में आएंगे. तो इधर आएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस एज इट इज़ रहेगा. ओके, तो 6 2 जा 12. इसका मीनिंग हाइपोटेनस कितना है अपना 12 आ गया. तो हाइपोटेनस जो है वो अल्फ़ाबेटिकली हम पी आर लिख सकते हैं. सो पी आर इज इक्वल टू 12.
After that we have to find the next side PS, and PS it is the opposite side of 60 degree, and we know about very well opposite side of 60 degree formula. Is equal to under root 3 upon 2 into hypotenuse. So opposite side of 60 degree is a PS is equal to under root 3 upon 2, and less PS above we have find the hypotenuse value PR is 12. So PS is equal to 2 6 12, because division, then 6 into under root 3, it is the answer of PS. And like this we have got the values of PR is equal to 12 and PS is equal to 6 under root 3. Like this we got complete solution. Now you can take its also screenshot. Next example number 5. For the finding AB and BC with the help of information given in figure, complete the following activity. So you have given the figure ABC, it is right angle triangle, as well as AB and BC has both as the same lines. ये जो सेम लाइन है ये दिखाती हैं कि AB और BC ये सेम लाइन्स हैं, और आपको AC लेंथ गिवन है अंडर रूट 8. तो देखिए ABC अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल B जो है ये राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड जो है ये C ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये सबको पता है. तो फिर देखिए हमें फॉलोइंग एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करनी है. तो एक्टिविटी किस तरीके से आपको गिवन है, देखिए पहले आपको गिवन है AB इज इक्वल टू BC, तो इसका आपको रीज़न लिखना है वो क्यों इक्वल है. तो हम बोल सकते हैं कि बोथ आर इक्वल बाय व्हाट पर्पस, इट इज़ गिवन इन द फिगर. तो आपको यहाँ पे लिखना है गिवन इन फिगर. उसके बाद आपको दिया गया एंगल BAC, देखिए एंगल BAC ये है. तो आपको ये भी पता है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, जब दो साइड्स इक्वल होती है तब उसके जो थर्ड अनइक्वल साइड के एडजेसेंट दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो समझ लीजिए अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये बेस साहब है कि दोनों रिमेनिंग एंगल ये 45 डिग्री ही है, क्योंकि वो दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल होते हैं. तो एंगल BAC अगर है तो एंगल BCA भी उसको क्या है, इक्वल. तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगल BCA. आफ्टर दैट यू हैव गिवन AB इज इक्वल टू BC. AB एंड BC ये दोनों साइड देखिए, ये दोनों साइड जो हैं ये 45 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है. कैसे हैं, 45 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल 45 डिग्री है. तो जैसे कि हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखो, सबको पता है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है, 45 डिग्रीज अपोजिट साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस. सबको पता है और हमने लर्न भी किया है. तो देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC है. अगर AC हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि AB इज इक्वल टू BC, मतलब दोनों 45 के अपोजिट साइड है तो दोनों इक्वल हैं. तो फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी में लिखना है 1/√2. तो 1/√2 इंटू AC का मतलब क्या है कि वो हाइपोटेनियस है. उसके बाद देखिए आपको AC की वैल्यू √8 दी है, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है. तो यहाँ पे ये 1/√2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे √8 को 2/√2 में कन्वर्ट किया गया जा सकता है. कैसे कि देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि √8 है
तो 8 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, ओके। और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 2, तो ये बचा हुआ 2 अंडर रूट में वो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब अंडर रूट 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो अभी देखिए यहाँ पे सेम, तो फिर से ये 1/√2 नीचे आ जाएगा। फिर अभी यहाँ पे न्यूमरेटर को √2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या है 2, 2 1 जा 2, तो लास्ट फिलिंग द ब्लैंक में आंसर आएगा 2। तो ये 2 जो वैल्यू है ये किसकी है, AB = BC की वैल्यू। एंड लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? इफ यू वांट यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल्सो।